تلاوت قرآن کو قبول فرما۔ اے مولا قرآن والوں کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ جو کمی کوتاہی کرتے ہوئے یہ سننے میں ہوئی ہے، اے مولا اس کمی کوتاہی کو معاف فرما دے۔ اے مولا رحم کا معاملہ فرما، رمضان کی برکتوں سے ہمیں مستفید فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے نمازوں کو قبول فرما، قرآن کی تلاوت کو قبول فرما۔ اے مولا رمضان کا ایک حصہ باقی ہے، اے مولا ابھی تو ایک اشرا رحمت کا گزرا ہے، ابھی مغفرت کا اشرا ہے، آج سے آزادی کا زمانہ یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تاریخ کا منظر اور کیا ہے؟ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل عمر کا بول اٹھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں طٰہٰ کہا ہے، کہیں یاسین کہا ہے، کہیں والضحیٰ کہا ہے، کہیں واللیل کہا ہے، یا ماشاءاللہ۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ رات میں ایک مثال ہے، جو کوئی نہ کر سکا وہ ماشاءاللہ میرے گھر والوں نے کر کے دکھا دیا۔ یہاں پر ماشاءاللہ ایک برگمین کی چابی اور برگمین گاڑی ان کے ہدیے میں دی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والوں کو انتظام فرمائیں۔ اسے کہتے ہیں علماء کی اور دینداروں کی محبت اور ان کی عزت۔ سلام ہے دینے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو اس کا ایک بدلہ عطا فرمائے۔ جنہوں نے اس میں تعاون کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پورے جہاں میں بدلہ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ مفتی نبی صاحب ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا فیض جو ہے وہ اس علاقے میں عام فرمائے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو ہے ہمارے مفتی منہاج صاحب ماشاءاللہ میرے شاگرد بھی ہے، اور ان کا استاد ہونے کا شرف مجھے حاصل ہے۔ جناب مفتی صاحب جو رجے میں پڑھا کرتے تھے، میں خطاب انشاءاللہ ذمہ دار یوسف بھائی صاحب کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ علماء کے دلوں کو خوش کرنا، یہ میرے عزیز دوستو یہ انسان کی اپنی نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد یہاں پر جو ہمارے مسجد طالب کیا جاتا ہے، سب سے پہلے ان کو استقبال کرنے کے لیے مشکل بھائی پراٹک والے جو ہے ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ صدر صاحب کا یہ بھی صدر صاحب پر انشاءاللہ استقبال کریں گے، اور انور بھائی صاحب جو ہے وہ بھی آئے، وہ بھی صدر صاحب۔ ماشاءاللہ۔
जनाब आजम पठान साहब वैसे आखिरी मरहला है, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी। नमाज को, अल्लाह के हुक्म को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपनी जिंदगियों में लाओ, अपनी जिंदगी का मकसद दीन को बताओ, दीन को बनाओ। मेरी जिंदगी का मकसद मेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरे अजीजों, अपने आप को कामिल मुसलमान बनाओ। अधूरी चीज कोई पसंद नहीं करता, तो अधूरा इस्लाम, अधूरा दीन अल्लाह कहां से पसंद करेंगे? हमारे हर अमल में दीन को लाओ, इस्लाम को लाओ। हमारे उठने में, बैठने में, चलने फिरने में, हमारे तिजारत में, मामलात और माशरत में दीन को अपनाओ। आज मुसलमान जो बदनाम हो रहा है वो हमारे अपने करतूत की वजह से, तो इसने पुरानी तालीमात को छोड़ दिया। एक वाकया सुनाता हूँ। एक सहाबी निकले, किसी ने कहा कि मुझे घोड़ा बेचना है, गैर मुस्लिम था, मुझे घोड़ा बेचना है, आप खरीदोगे? उन्होंने कहा कि हाँ खरीदूंगा। क्या इसकी कीमत क्या है? उन्होंने कहा कि 500 दिरहम। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसकी ट्रायल लेता हूँ। लेते ना ट्रायल गाड़ी, तो ट्रायल लेने के वास्ते उस घोड़े पर बैठे, एक चक्कर लगाया, वापस आए, कहने लगे कि इसकी कीमत 500 दिरहम नहीं है। तो कहने लगे फिर कितनी दोगे आप? उन्होंने कहा कि 500 नहीं, इसकी कीमत तो 600 दिरहम है। कितनी है? 600। हमने कभी बढ़ाया ऐसा? बेचने वाला 500 कह रहा है और हम कह रहे नहीं 600। अब तो कहते हैं कि भाई और इसमें से कुछ कम करें, तो हम जानते हैं कि ये है कि नहीं, कि लेकिन और उसमें से जितना इसको तोड़ सकते हैं तोड़ दो, इसकी मजबूरी का फायदा होगा। ये हमारी सोच है आज। उन्होंने कहा कि 500 का नहीं है, ये 600 का है। फिर कुछ सोच कर कहा कि नहीं 600 का भी नहीं, ये 700 का है। फिर कहा कि नहीं ये 800 का है इसकी कीमत। वो जो सामने था गैर मुस्लिम, उसको बड़ी हैरत हुई कि मैं इसका 500 इसकी कीमत बताता हूँ, मेरा माल है, तो ये 800 कह रही है। उन्होंने कहा कि तुम, साहब ने पूछा कि तुम इतनी कम कीमत पर क्यों बेच रहे हो? उसने कहा कि मेरी बेटी की शादी है, उसकी तैयारियां मुझे करनी है, इसलिए मैं मजबूरी में ये 500 में बेच रहा था। उन्होंने कहा कि मैं भी मजबूर हूँ। वो कहने लगा कि भाई मैं तो मजबूर हूँ 500 में बेचने में, तुम 800 में क्यों खरीद रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं भी मजबूर हूँ। वो कहने लगे तुम्हारी क्या मजबूरी? वो कहने लगे मेरी मजबूरी ये है कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का ताबे हूँ। हुजूर ने फरमाया सौदा खरीदो, किसी की मजबूरी मत खरीदो। अब तो मजबूर सोचते हैं हम, तो कोई कब मजबूर हो जब उस पर हालात आएंगे। 1 लाख की चीज 50 में देने का, रुक जाओ जरा, तो उस पर हालात आएंगे खुद देगा। ये हमारी सोच है। हम तो इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, हम तो मोहम्मद आलमी के गुलामी का दम भरने वाले हैं। हमारे मामला कैसे? इसलिए मेरे अजीजों, अपने मामला को दुरुस्त करो, लोगों के सामने इस्लाम की सही तस्वीर पेश करो। जो भी काम कर रहे हो उलमा से उसके दीन की मालूमात लो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इसका दीन क्या है, मुझे तिजारत कैसी करनी चाहिए, मुलाजिमत कैसी करनी चाहिए, मैं खेती कर रहा हूँ, उस खेती में क्या हक है। इसलिए मेरे अजीजों, अपने आप को इस्लाम के ताबे बनाओ। खुदा की कसम कि लोग जो आज मुसलमानों को दबाने के पीछे हैं, इनको कमजोर करने के पीछे हैं, मुसलमानों के दुश्मन बने हुए हैं, खुदा की कसम तुम्हें इज्जत हासिल करने से, तुम्हें बुलंदी हासिल करने से बचना है। तो मौला इस रमजान में भी और रमजान के बाद भी खूब इबादतें करने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि एक लम्हे की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। ये नहीं पढ़ने की तौफीक अता फरमा, नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। तो मौला रहम का करम का मामला फरमा, इस इलाके में अपनी मौला रहमत की फिजाओं को, हवाओं को चला दे, अपनी बरकतें नाज़िल फरमा दे। तो मौला इस बस्ती पर और इस मस्जिद पर खुसूसी रहमत नाज़िल फरमा, मस्जिद बनाने वालों को कबूल फरमा, मेहनत करने वालों को कबूल फरमा, यहाँ पर मौला अपना जान मान लगाने वालों को कबूल फरमा, जवानों की जवानियों को कबूल फरमा, इनकी खिदमतों को कबूल फरमा। जिसने मौला जिस तरीके से भी
मदद की है, जिस तरीके से भी मौला उलमा की खिदमत की है, जो भी तेरे घर में तो दीन की मेहनत करने वालों पर लगाया है, लगा रहे हैं, ये मौला उनको उसका बेहतरीन बदला अता फरमा दे, बेहतरीन बदला अता फरमा दे, दोनों जहान में कामयाब बना दे, दोनों जहान में सबसे खुशहाली अता फरमा। ये मौला जो बीमार है उन्हें शिफा कामिला आजिला मुस्तमिर दाइमा नसीब फरमा। ये मौला बीमारों की दरखास्त आई है, शफीक भाई मौला इनकी तबीयत ज्यादा नासाज है, ये मौला उनको तो शिफा कामिला आजिला अता फरमा, उनके पैरों को खड़ा फरमा। ये मौला जो बीमार है उम्मत मुस्लिमा में जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है, लिखा है, मुतवक्किल है, या उनका हम पर हक है, तमाम की मौला जायज मकासद और तमन्नाओं को पूरी फरमा। ये मौला जो बीमार है शिफा अता फरमा, मकरूजों के कर्जों की अदायगी की शक्ल सूरत पैदा फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। ये मौला जो जिस लाइन से परेशान है, या तो तू जानता है या वो जानता है, ये मौला तू दिलों के भेद को जानने वाला है, ये मौला तो अली मुंबिला की सुनूर है, ये मौला ऐसी परेशानियां है कि वो तेरे अलावा किसी के सामने नहीं कही जा सकती। ये मौला तो तमाम की तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे, अपने फजल से मौला परेशानियों को खत्म फरमा दे। ये मौला के बेनिकाह है, बेटी है और बेटियां हैं, ये मौला तो बेनिकाह है, इंतजाम फरमा, निकाह को आसान बनाने की तौफीक अता फरमा, खुराफात से गुनाहों से और निकाह के जो खुराफात की जायज हो चुके हैं, वो हलाइयाँ और बुराइयाँ उसको खत्म फरमा, सुन्नत के मुताबिक निकाह करने की तौफीक अता फरमा। ये मौला रहम का, करम का, अफ़्व का, दरगुज़र का, बख्शिश का, सहूलतों का मामला फरमा। ए मौला, ए मौला, ए मौला दुनिया में भी भलाई अता फरमा, भलाई अता फरमा, कब्र की आज़ाब से हिफाजत फरमा, उन सिरात का रास्ता आसान फरमा। ए मौला, ए मौला, जब निज़ाम तू लगे हो, अमाल तू लगा रहे हो, ए मौला हमारा नेकियों का पल्ला भारी फरमा, फरमा, जहन्नम से हिफाजत फरमा, जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अता फरमा। ए मौला तेरी रज़ा नसीब फरमा। ए मौला जो हमारे रिश्तेदार में ए मौला तेरे पास आ चुके हैं, ए मौला गुज़िश्ता रमज़ान हमारे साथ थे, अब तेरी रहमत की मग़फ़िरत फरमा। ए मौला उनके कदमों को नूर से मुनव्वर फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे असातिज़ा की मग़फ़िरत फरमा। ए मौला उन्हें मांगना नहीं आता, जो मांगे वो भी आता फरमा, जो मांगने से लेकर ये मौला अपने शान निशान अता फरमा। ये मौला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर की लाइन से दुआएं मांगी है, मौला उसमें हमारा हिस्सा नसीब फरमा। जिन जिन शूर से पनाह चाहिए है, ये मौला हम तो तुझसे पनाह चाहते हैं, उससे हमारी और मौला तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। हमारी दुआओं को महज अपने फज़ल करम से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सन्नत तुफ़ैल को कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
السلام علیکم. السلام علیکم. یہ مسجد فاطمہ بن ہلابی اس کا نام ہے، نارے گاؤں کوہ نور پارک ہے. یہ 15 سال ہو گئے اس مسجد کو آباد ہو کر، اور یہ مسجد عبداللہ بھائی ان کے والدہ کے لیے انہوں نے بنایا. عبداللہ بھائی بن فاطمہ بن ہلابی اس مسجد کا نام ہے. اور یہاں پر 10 دن سے 3 پارے قرآن شریف سنایا جا رہا تھا. اور یہاں پر ذمہ داروں نے مؤذن صاحب کو گاڑی دی، برگمین دیے. یہ اس لیے دیے کہ لوگوں کو بتانا نہیں ہے کہ ہر مسجد کی کمیٹی اور ہر مسجد کے ذمہ دار مؤذن اور امام کا خیال کرے کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. اس لیے یہ میسیج لوگوں تک پہنچانا ہے. آپ کا نام؟ میرا نام عبید اللہ خان.